Hello, my dear students. Welcome back in our topic chemical kinetics. In last lecture, we had completed three order of reaction. Last period में हमने तीन order of reaction complete कर लिए. One first order reaction in which rate of reaction depend upon the concentration of one reactant molecule. Second, zero order reaction in which rate of reaction independent upon the concentration of reactant molecule. And third one is the pseudo first order reaction in which more than one molecule of reactants are involved, but the rate of reaction depend upon concentration of one reactant molecule. उसके बाद बेटा हमने कंप्लीट किए molecularity of the reaction. Molecularity, it is the total number of molecules of reactant present in chemical reaction. Right? Now on the basis of number of molecules, there are the three types of molecularity. One is the unimolecular reaction in which one molecule is involved. Second one is the bimolecular reaction in which two molecules are involved. And third one is the intramolecular reaction in which three molecules are involved. So this much we had completed in last lecture. Now today we are going to learn integrated rate law for first order reaction. Integrated rate law for first order reaction, or the expression of a rate constant K फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आज बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या बेटा इसी को बोलेंगे हम एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट, इट कैरीज 3 मार्क्स. ये बेटा डेरिवेशन एग्जाम में 3 मार्क के लिए आती है, और बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन, देन वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मेरे बेटा वर्डिंग के ऊपर ध्यान दो. हाँ, पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेंगे और उसके बाद बेटा हम उसकी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. नाउ सी हियर, नाउ दोज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन obtained by applying integration to rate law, which gives direct relationship between the time and concentration of reactant, is called as integrated rate law. तो बेटा जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन आपको मालूम है बेटा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये दोनों बेटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना. हाँ, तो बेटा जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम बेटा इंटीग्रेशन, उसके रेट लॉ को इंटीग्रेशन अप्लाई करते, तो बेटा एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म होती, और बेटा वो मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेशन होती है. किस किस का रिलेशन होती है? टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. So such mathematical equation or expression is called as integrated rate law. So the mathematical expression obtained by applying integration to rate law, which gives direct relationship between the time and concentration of reactant, that mathematical expression is called as integrated rate law. अब बेटा हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ की एक्सप्रेशन डिराइव करना है, या बेटा के बोले तो बेटा रेट कांस्टेंट. तो बेटा रेट कांस्टेंट, मगर किसके लिए बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी बेटा एक्सप्रेशन डिराइव करना है. चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कौन सी एक्सप्रेशन डिराइव करना है. Now for the first order reaction, a rate constant K is given as K is equal to
2.303 अपॉन टी log base 10 A0 अपॉन 80। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कौन सी रिएक्शन के लिए बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा रेट कांस्टेंट के की एक्सप्रेशन है बेटा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log base 10 A0 upon 80, right? Now in this expression, K it is an rate constant, T it is an time, A0 initial concentration, AT concentration remains या बेटा concentration left। अब बेटा ये एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। एग्जामिनेशन में बेटा ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता। कैसा आएगा क्वेश्चन? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा बेटा शो डैट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log base 10 A0 अपॉन 80, राइट? या बेटा तीसरा क्वेश्चन आएगा, what is integrated rate law? Derive an expression for integrated rate law for first order reaction। तीनों में से बेटा क्वेश्चन कोई भी आने दो, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलो रेडी है आप लोग? तो बेटा हम, अगर आप लोग रेडी हैं तो बेटा ये एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे, राइट? नाउ सपोज there is an chemical reaction in which reactant A is converted into product B। अब बेटा एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बेटे रिएक्टेंट A का कन्वर्शन हो रहा प्रोडक्ट B में। नाउ इट इज एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर। व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन the concentration of one reactant molecule, therefore this reaction is called first order reaction। चलिए, for this reaction rate law is given as rate directly proportional, क्या हो जाएगा बेटा? rate directly proportional to the concentration of A, rate directly proportional टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। चलिए बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहां तक समझा बेटा? तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन लिए, इन दिस केमिकल रिएक्शन reactant A is converted into product B, therefore rate of reaction directly proportional to concentration of A। proportionality sign निकाले बेटा, so rate is equal to K into concentration of A। अब बेटा ये रेट ला हो गया ना, राइट? अब एक काम करेंगे, अब बेटे A के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखते हैं हम? So for reactant A, rate of reaction is given as minus D concentration of A divided by dt। ऐसे लिखते ना बेटा, decrease in concentration of A with respect to time। So that is equal to, right, K into concentration of A। तो बेटा मैंने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिखा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और बेटा इसको पढ़ते कैसा हम? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वाई माइनस साइन इज यूज हियर? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज डिक्रीजेस। ठीक है, चलो अब बेटा एक काम करो, dt को लेकर जाओ इधर, राइट, और बेटा ये a को ला लो इधर।
और बेटा डी टी को माइनस साइन के साथ लेकर चले जाओ, राइट। सो एक्सप्रेशन बिकम्स डी concentration of A divided by concentration of A, that is equal to minus K into dt। ये सोचेंगे ना बेटा, तो माइनस डी टी को ले गए हमने उधर और बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को लाए इधर। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको बेटा आपने नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1। सो देर इज एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives rise to B. For this reaction rate law is given as rate directly proportional to concentration of A. Therefore rate is equal to K into concentration of A, right। अब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखेंगे हम, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। बेटा फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन, याद होगा आपको, राइट। सो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को लाए इधर और माइनस डी टी को ले गए उधर, तो बेटा एक्सप्रेशन बनी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। और बेटा इसको दिए अपन ने इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब बेटा ये डेरिवेटिव्स है ना, डी बोले तो बेटा क्या रहता, डेरिवेटिव्स। और बेटा इसको बड़ा करना है तो क्या करते हम, इंटीग्रेशन अप्लाई करते ना। चलिए इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें बेटा कंसीडर कर लो। लेट A0 is initial concentration, let A0 is initial concentration। बेटे रिएक्टेंट A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मतलब एट स्टार्ट मतलब बिफोर स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शन, राइट। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 0, बराबर है ना बेटा। हाँ, तो क्या कंसीडर करें बेटा, A0 इज एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। A0 क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन, बेटा रिएक्शन शुरू होने से पहले, तो बेटा टाइम कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। चलिए लेट AT is concentration remains, so let AT is concentration remains, so AT is an concentration remains। तो बेटा AT क्या है बेटा, concentration remains आफ्टर टाइम t। कितने टाइम के बाद बेटा, टाइम t के बाद, तो t इज इक्वल टू t। सो आफ्टर टाइम t द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स और कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट इज AT एंड एट स्टार्ट A0 इज एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समझा बेटा यहां तक। सो व्हाट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A0, then what is the time, t is equal to 0, and after time t the concentration remains is AT, right। अब बेटा ये इक्वेशन है ना, अब इसको लॉन्ग करना है लॉन्ग फॉर्म में, तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन। सो बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन, by applying integration to equation number 1, by applying integration to equation number 1, तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद बिटवीन द लिमिट, अब बेटा इंटीग्रेशन के साथ साथ लिमिट अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है बेटा, लिमिट। So between the limit A0 to AT, between the limit A0 to AT,
for concentration A0 to AT for concentration। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे A0 to AT। लिमिट समझता ना बेटा? हाँ, लिमिट बोले तो हद बोलते हैं ना, हमारी लिमिट यहां तक है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक है? A0 to AT। इनिशियल बेटे A0 है, फाइनल बेटा AT है, राइट। तो बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन के साथ साथ लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट बेटा क्या लेंगे? A0 to AT फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड 0 to T and 0 to T for time. So by applying integration to equation number 1, तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद, और बेटा इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या अप्लाई करना है? लिमिट अप्लाई करना है। कौन सी लिमिट? A0 to AT बेटा कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और बेटा 0 to T टाइम के लिए। 0 to T टाइम के लिए, मेरे पेन की तरफ देखो बेटा, हाथ की तरफ देखो। 0 to T बेटा टाइम के लिए, और A0 to AT फॉर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अब बेटा इसको इंटीग्रेशन और लिमिट अप्लाई करो, तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या हो जाएंगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिटवीन द लिमिट। अब बेटा ये लिमिट कौन सी लिमिट? A0 to AT, A0 to AT फॉर कॉन्सेंट्रेशन। ये लिमिट समझता ना बेटा? ये सिंबल बोले तो इंटीग्रेशन, और ये बेटा A0 उसकी इनिशियल लिमिट है, AT बेटा उसकी फाइनल लिमिट है, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिटवीन द लिमिट A0 to AT दैट इज इक्वल टू -K। अब बेटा इंटीग्रेशन साइन और कांस्टेंट को अप्लाई नहीं होता। अब बेटा ये निगेटिव साइन है और बेटा K कांस्टेंट है, तो बेटा साइन और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। देयरफॉर इट इज एज इट इज -K इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt बिटवीन द लिमिट 0 to T, बिटवीन द लिमिट 0 to T। तो बेटा क्या अप्लाई करे? बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करे। इंटीग्रेशन के साथ साथ बेटा क्या अप्लाई करे? लिमिट अप्लाई करे। कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिमिट अप्लाई करे A0 to AT, और बेटा टाइम के लिए लिमिट अप्लाई करे 0 to T। ठीक है, चलिए अब बेटा पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे हम। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद बेटा लिमिट सॉल्व करेंगे। अब बेटे लॉग में एक फॉर्मूला है, लॉग ऑफ dx अपॉन x, लॉग ऑफ dx अपॉन x दैट इज इक्वल टू, सॉरी हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल x। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉग e, इसको पूरा पढ़ते बेटे लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल, या बेटा शॉर्ट में पढ़ेंगे लॉग e। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल x। अब बेटा अपने पास dx अपॉन x की जगह क्या है? d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, यानी कि बेटा अपने पास x की जगह क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a है। तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। अब बेटा इसकी लिमिट, हाँ लिमिट कितनी है बेटा? बिटवीन द लिमिट A0 to AT, बिटवीन द लिमिट A0 to AT दैट इज इक्वल टू -K एज इट इज इनटू
अब बेटा ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसल, क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या रहते बेटा, अपोजिट रहते। तो माइनस के इंटू टी, माइनस के इंटू टी। अब बेटा टी की लिमिट 0 टू टी, 0 टू टी हो गया बेटा। तो ये क्या सॉल्व हो गया बेटा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व करना है हमको, लिमिट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बेटा, लिमिट। अब बेटे लिमिट का सिंपल फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बेटे कॉन्सेंट्रेशन की अपर लिमिट क्या है 80 और लोअर लिमिट क्या है, ये देखो एरो बताया मैंने। तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो बेटा फिर क्या हो जाएगा रे ये, इट बिकम्स log of exponential 80, log of exponential 80 minus log of exponential a0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बेटा लिमिट का सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है बेटा log of exponential 80, लोअर लिमिट है log of exponential a0। सो log of exponential 80 minus log of exponential a0 that is equal to minus k into, अब बेटा टाइम, अपर लिमिट है बेटा t माइनस लोअर लिमिट है 0। सो माइनस के इंटू टी माइनस 0। अब बेटा टी माइनस 0 कितना होगा, टी होगा ना। जैसा बेटे 1 माइनस 0 1 होता है, वैसे बेटा टी माइनस 0 टी होगा। सो इट बिकम्स log of exponential 80, log of exponential 80 minus log of exponential a0, log of exponential 80 minus log of exponential 0 that is equal to minus k into t, minus k into t। अब बेटा इसमें a0 क्या रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 80 बेटा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स, k it is an रेट कांस्टेंट, और बेटा t इट इज एन टाइम। अब बेटा यहाँ k के साथ माइनस है ना, हमको तो सिर्फ बेटा k चाहिए। देख रहे ना यहाँ आप एक्सप्रेशन, हमको तो बेटा k चाहिए सिर्फ, मगर बेटे यहाँ पे है माइनस k। अब बेटा ये माइनस साइन नहीं चाहिए ना, इसको इनवर्स कर दो, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, राइट। तो बेटा k इंटू टी, k इंटू टी दैट इज इक्वल टू log of exponential a0, log of exponential a0 minus log of exponential at, राइट। यहां तक समझा बेटा। तो बेटा यहां इंटीग्रेशन अप्लाई करें, पहले बेटा इंटीग्रेशन सॉल्व करें। तो ये आया बेटे log of exponential concentration of a between the limit a0 to 80 that is equal to minus k, और बेटा इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये हुआ t between the limit 0 to t। अब बेटा लिमिट सॉल्व करें, लिमिट का बेटे सिंपल कॉन्सेप्ट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो log of exponential 80 minus log of exponential a0 that is equal to minus k into t minus 0। अब बेटा t माइनस 0 बोले तो t, तो बेटे log of exponential 80 माइनस log of exponential a0 that is equal to minus k into t। अब बेटा ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो बेटा इसको कर लिया अपन ने इनवर्स। सो k इज इक्वल टू t, k इंटू टी दैट इज इक्वल टू log of exponential a0 माइनस log of exponential at। यहां तक समझा बेटा, चलिए
चलिए, तो बेटा हमने पढ़ा बेटा v k इंटू टी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल a0 माइनस लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल at। अब बेटा आपने एक लॉग में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लॉग a बाय b दैट इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। पढ़े ना बेटा, ऐसा है ना ये। हाँ, तो बेटा फिर लॉग a माइनस लॉग b किसके इक्वल होगा? लॉग a बाय b होगा ना बेटा। तो ये भी वैसा होगा ना। हाँ, सो k इंटू टी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल a0 डिवाइडेड बाय at। नाउ k it is an rate constant, t it is an time, a0 initial concentration, at फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटे लॉग बुक में एक वैल्यू है लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ये लॉग टेबल में बेटा फॉर्मूला है, आप चाहे तो अपने लॉग टेबल में देख सकते हैं। सो लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। तो बेटा मैं ये लॉग एक्सपोनेंशियल की जगह क्या लिख सकता? 2.303 log base 10. So this expression becomes k into t that is equal to 2.303 ये बेटा log base 10 राइट, ये बेटा a0 डिवाइडेड बाय at राइट। अब बेटा t को अभी रहने दो इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा k इंटू टी दैट इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 a0 अपॉन at। अब बेटा अपने को रेट कांस्टेंट k की एक्सप्रेशन चाहिए ना। चलो ये t को ला लो बेटा इधर डिवाइड में ला लेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा फिर ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a0 अपॉन at। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log base 10 a0 upon at। Now it is the expression for the rate constant for first order reaction। ये बेटा एक्सप्रेशन है बेटा रेट कांस्टेंट की, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन k इट इज एन रेट कांस्टेंट। k क्या रहेगा बेटा? रेट कांस्टेंट राइट। नाउ t इट इज एन टाइम, t रहेगा बेटा टाइम, एंड देन a0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a0 रहेगा बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड at इट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या बेटा कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स। ठीक है। अब बेटा ये k यहाँ है, t यहाँ है ना। चलिए अब बेटा t को ले जाओ इधर, k आ जाएगा इधर। तो बेटा अभी टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया? टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 a0 अपॉन at, a0 अपॉन at राइट। सो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम। ये बेटा एक्सप्रेशन है बेटा किसके लिए? बेटा टाइम के लिए राइट। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन t इट इज एन टाइम, k इट इज एन रेट कांस्टेंट, a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, at फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बेटा डेफिनेशन करेक्ट हो रही क्या? अब बेटा ये टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशन है। इट इज द टाइम एंड इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों का रिलेशन है ना बेटा। अब बेटा ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, मगर बेटा कब फॉर्म हुई? जब बेटा अपन ने इंटीग्रेशन अप्लाई करे, किसको? रेट लॉ।
राइट। और बेटा ये एक्सप्रेशन रिलेशन है किस किस का बेटा, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो सच एक्सप्रेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन टू रेट लॉ which gives direct relationship between the time and concentration of reactant is called as integrated rate law. Okay, so today we will stop here, tomorrow we will continue.